The special feeling of standing on the podium with the medal for the country, and you're standing especially in the Olympics with that medal. You know, it's a dream of every player to win an Olympic medal. मेरी मम्मी को विश्वास था. She was a big tennis fan. वो मुझे बोली कि मुझे I want an Olympic medal from you. I had the opportunity to do that. तो इतना special feeling लगता है मुझे. Government has done that really well कि finally player ऐसा बोले ना कि कोई मुझे support नहीं कर रहा है. There's every kind of support available now, but it's just that कि player का 100%, I think 200% चाहिए बस अभी जगह वो result लेके आ सके. और आई थिंक इसलिए ही रिजल्ट्स आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहा है. स्पोर्ट्स इतने अच्छे एरा में है, एज आई सेड इट्स अ गोल्डन एरा वे यू कैन सी कि हर एक स्पोर्ट को वो इम्पोर्टेंस मिल रहा है एंड हर एक स्पोर्ट रिजल्ट लेके आ रहा है. Welcome to New India Junction's podcast with Ananya. आज हम हैं हैदराबाद में because we are having an interesting conversation with Saina Nehwal. Yes, the Saina Nehwal, the first shuttler, the first badminton player from India to get a medal at the Olympics. Based on my research, she has won over 24 titles, including 11 Super Series titles. And she seems like a fun person if you check out her Instagram. And so we are here to talk to her about sports, life, nation, politics, everything that you can imagine. So let's get started. Hello, ma'am, and thank you so much for joining us today. Hello. Nice to have me here. Thank you so much. अच्छा, पहले आप मुझे ये बताओ कि आपका Instagram कौन हैंडल करता है? It's mostly me only, and then being a sports person, you have some time in between your training sessions, and then you have always some time after, you know, as I said, you finish your sessions, you want to do something different because the whole time your mind is in the game, and then you have to do good recovery and then good rest for sure. But in the meanwhile, then I'm like, yes, I have to take good pictures. I have to post it, and that Instagram has become so friendly now, and I love clicking pictures, and I love posting it, and it's a fun thing to do, and something different. You know, mind is always a little off that way. Otherwise, it's always occupied with your game. थोड़ा busy रहते हैं हम. चार्ज अप हो जाती है. थोड़ा अच्छा लगता है. लड़कियों को तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है. Because I've seen pictures. Abhi I saw that one with a black dress, and you love trying out new looks and vibes. So that was interesting. Yes. Given, I mean, you are the player, the badminton player in the country, but it was just very interesting. It's very different also because मुझे भी सरप्राइज था वो कि क्योंकि हम हमेशा कोर्ट पे ज़्यादा रहते हैं. एक दो इवेंट्स आ जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ अलग पहनने को मिलता है. अदरवाइज इट्स फुल टाइम वी आर इन द स्पोर्ट्स वेयर. तो कुछ अलग पहना और मुझे खुद ही सरप्राइज हुआ फोटो देख के कि अरे यार हम भी बहुत ही अच्छे दिखते हैं. एंड ये भी एवटार ये भी हो सकता है हमारा. तो अच्छा लगता है. एंड लोगों को थोड़ा सा ये लुक भी चाहिए होता है क्योंकि इतने पूरा साल हम टीवी पे ऑब्वियसली गेम से तो दिखते ही हैं, बट थोड़ा बहुत ऐसा अदर साइड भी दिखना चाहिए. For your 2 million followers on Instagram. Wow. Thank you. Okay. So first question to you. You are Haryana ki chori. Is that where you're from originally? जी. And then you came to Hyderabad. जी. How old were you? I was 8 when I moved here. Parents actually यूपी से है दोनों, and पापा का प्रमोशन काफ़ी होता रहा. तो जब हम हरियाणा शिफ्ट हुए बिकॉज ही गॉट प्रमोटेड, तो वहाँ पे काफ़ी साल पापा ने जॉब किया. एंड देन मैं वहीं पे बड़ी हुई. मैं वहीं पे मैंने अपना 3rd 4th स्टैंडर्ड तक वहाँ पे थी. पापा को फिर प्रमोशन मिल गया. एंड देन ही वाज लाइक के अब मैं किधर चूज़ करूँ जगह, क्योंकि उनको 5 जगहों का ऑप्शन मिला था. एंड समहाउ ही चोज हैदराबाद. हम भी वर लाइक लिटिल बिट, क्योंकि हमेशा नॉर्थ में थे तो पापा को क्यों हैदराबाद पसंद आया, क्योंकि टोटली साउथ इंडिया हो गया और फिर लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है. लेकिन कभी कभी डेस्टिनी प्लेज अ बिग रोल. मैंने भी कभी वहाँ पे बैडमिंटन खेला नहीं. दे यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन इन द क्लब. वहाँ पे हरियाणा में क्लब में खेलते थे पापा मम्मी, तो मैं उनको देखती थी वहाँ पे खेलते हुए. लेकिन माई पेरेंट्स एंड मुझे कभी इतना इंटरेस्ट नहीं आया उसमें. मैं हमेशा ऑमलेट खा के कुछ तो भी करके स्विमिंग चली जाती थी या कुछ तो भी. लेकिन ही सेड नहीं, अब हैदराबाद शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि मेरे जॉब का वो रिक्वायरमेंट है. देन वी वर लाइक नहीं पापा, मेरे फ्रेंड्स पूरे यहीं पे हैं. और टोटली आई वाज ओनली 8. Okay. I was 8.
पर पापा ने कहा नहीं काम है तो वी हैव टू जाना पड़ेगा एंड देन वी ऑल वर लाइक ओके फाइन विल कम अलोंग एंड देन यहाँ पे आके इनिशियली फर्स्ट ईयर वाज टफ क्योंकि टोटली डिफरेंट हो गया, मतलब ऑब्वियसली मैं बहुत ही यंग थी, 8 साल की थी, तो फ्रेंड मिस हो रहे थे ऑब्वियसली। एंड देन उसके बाद स्कूल जाती थी आती थी एंड देन आई वाज अ वेरी स्पोर्टी पर्सन, मुझे बहुत स्पोर्ट्स खेलना पसंद था उस टाइम पे भी। तो पापा से बोला पापा स्कूल के बाद कुछ ऐसी चीज़ हो जो मैं कर सकूं, मुझे कुछ करनी है एक्टिविटी है ना, यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स हो तो आई विल डू दैट। नया शहर है, समथिंग टू सॉर्ट ऑफ कीप यू एंगेज। कुछ करना है तो कराटे क्लासेस वर गोइंग ऑन, घर के पास ही था, तो मैंने वो भी 1 साल के लिए किया और मुझे ब्राउन बेल्ट मिला उसमें। एंड आई वाज एक ही बेल्ट और चाहिए था मुझे टू कंप्लीट दी कराटे लेसन्स, लेकिन इट वॉज सो टफ फॉर मी क्योंकि मतलब स्टमक यूज टू हर्ट, थोड़ा बहुत टफ स्टंट्स होते थे। ऑब्वियसली यू नीड टू बी रियली टफ टू डू कराटे, लेकिन मुझे थोड़ा सा हर्ट होने लगा, मुझे पेन होने लगा, तो आई वाज लाइक पापा मुझसे और नहीं होगा ना, आई थिंक मुझे कुछ और स्पोर्ट करना चाहिए। तो दैट्स हाउ वन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड वाज लाइक साइना को अगर स्पोर्ट्स पसंद ही है तो यहाँ पे बैडमिंटन वॉज वेरी बिग हियर। मुझे नहीं मालूम था इतना बड़ा है यहाँ पे। आई जस्ट थॉट कि मैं समर कैंप ज्वाइन हो जाऊंगी, कुछ फ्रेंड्स मिल जाएंगे, मैं थोड़ा उनके साथ कंपटीशन कर लूंगी। मुझे कंपटीशन पसंद था, आई जस्ट लाइक दैट स्पिरिट वेरी मच स्पेशली विद बॉयज, मुझे बहुत पसंद था वो करना, अच्छा लगता था। तो वहाँ पे जाके मैंने स्टार्ट किया समर कैंप में, लकीली मुझे एडमिशन मिल गया एंड 1 month आई हैड गुड फन, क्योंकि जो ऐसी ट्रेनिंग होती थी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि होती होगी। वो प्रोफेशनली खेलने के लिए नहीं शुरू किया था मैंने, जस्ट फॉर अपना फन के लिए, अपना स्कूल के बाद कुछ अच्छा टाइम पास हो जाएगा या कुछ ऐसे। एंड स्लोली रेस्ट इज हिस्ट्री, थोड़ा सा मैं किस्मत मुझे यहाँ तक लेके आ गई। कुछ बड़े टूर्नामेंट्स बहुत ही जल्दी करियर में मुझे मिल गए। 12 साल की उम्र में आई वाज प्लेइंग फॉर सीनियर्स इंटरनेशनल सर्किट, तो 2003 में मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला, सीनियर्स का भी और जूनियर्स का भी। तो इट्स बीन लाइक 20 years हाईएस्ट लेवल पे खेल रही हूँ मैं। एंड यहाँ पे आना एक आई वुड से एक लक था, एंड देन स्टार्ट करना गेम उस टाइम पे जब गेम वाज एक्चुअली नथिंग, व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग। मुझे पता भी नहीं था कि हम अपने कंट्री से कोई है भी जो बैडमिंटन खेलता है इंटरनेशनल लेवल पे। कुछ हम मतलब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड गर्ल्स में, बॉयज में वी एटलीस्ट हैड प्रकाश सर, गोपी सर हु डिड वेल, बट लड़कियों में तो वी नेवर हैड एनीवन। Your first name I ever knew that okay, women can play badminton and rock at the Olympics as well. हाँ, वो क्योंकि मेरी मम्मी को विश्वास था, शी वाज अ बिग टेनिस फैन, उनको स्टेफी ग्राफ बहुत पसंद थे वो टाइम पे। एंड जब मैंने खेलना शुरू किया विद इन 1 month उनको लगा कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, मुझे स्टेट चैम्पियनशिप में खेलने का मौका मिल गया, मैं सेकंड आई वहाँ पे खेल के। तो दैट इज़ हाउ आई थिंक, आई डोंट नो उनको क्या लगा ऐसा, वो मुझे बोली कि मुझे आई वांट अ ओलंपिक मेडल फ्रॉम यू। मैं वाओ ये क्या स्टेटमेंट है, बिकॉज दैट टाइम आई वाज लाइक ठीक है मजाक कर रही होंगी मेरे साथ, मुझे क्या लगा आई वाज लाइक पापा साइंटिस्ट है तो मैं शायद डॉक्टर बन जाऊंगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, बट शी हैड डिफरेंट प्लान्स फॉर मी। वो तो ऐसा मुझे पुश करती थी। दैट्स अमेजिंग, मतलब ग्रोइंग अप एज अ किड इन द 90s, if your parents are actually thinking of you and for their girl child, like कि अब तुम्हें स्पोर्ट्स में ओलंपिक लाना है, मतलब अब ये मतलब for the youth that is watching this podcast, maybe it is more relatable, but I'm sure at that time I want to know what was so unique. One thing you told me was the family ka environment and a lot of incentives there, but I mean you use luck, so you're being humble over there. But tell me, when you were training, when you were 16, 17, 18, what did it take in a day? मतलब आपका schedule उस ज़माने में, like when you were training, say for, I don't know, before 2012, before London Olympics. What kind of training, like what it takes, like what kind of hard work, if you can give us a sense of कि आपका दिन किस तरह से जाता था, किस तरह से कर रहे थे? 2006 Philippines Open was the first Philippines Open which I won at the age of 16, and it was I was the youngest to win a 4-star tournament then. Okay. And before then, as I said, I was 13 when I played my first senior international tournament. And I was playing quite well. I was beating quite a few top players. The good part was, we got Gopi sir as a coach at the right point of time. He retired in 2001 when he won the All Indian Championships. By then, I think we needed someone who could transfer our game from national tournaments to the international level tournaments.
तो ऐसा वी डिडंट हैव एनीवन, एवरीवन इज टू थिंक कि हम बाहर जाके ट्रेनिंग करेंगे, हम बाहर जाएंगे तो ही इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन लकीली ही केम इन एट द राइट टाइम, हमें उन्होंने राइट गाइडेंस दिया कि इंटरनेशनल लेवल खेलने के लिए what all you have to eat, what all you have to do to prepare yourself. You don't have to kill yourself in the training. You have to do right kind of training so that you can, also protect yourself from injuries at the same time. आप अपना results भी ला सको। तो ये सब जो चीज़ें थी, we didn't know all this. It was all new. हमें लगता था सिर्फ मेहनत करते रहेंगे 10-11 hours अपनी ट्रेनिंग, अपनी बॉडी को पुश करते रहेंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो दैट एक ही रूल होता था हमको कि बस मेहनत करो और रिजल्ट आएगा, मेहनत करो रिजल्ट आएगा। लेकिन वी डिडंट नो कि और भी कुछ हिस्से होते हैं जो आपको एक प्लेयर बनाता है। तो आई थिंक ही केम इन 2003, ही रियली helped me and lot of other players at that point of time. But I think मेरे में I use the word luck, but I would definitely say that कि I was very hard working. I could मैं mad workout कर सकती थी। मुझे actually coaches बोलते थे बस कर। अच्छा। It used to be like that. तो he was like, Saina, you're really good. I think थोड़ा सा touch up चाहिए, strokes में थोड़ा touch up चाहिए, good food में, everything just required little touch ups in my game. एंड द मोमेंट वो टचअप होने लगे एंड मुझे भी लगने लगा कि हाँ इतना पुश करने की ज़रूरत नहीं है, इतना रिक्वायर्ड है, बट इंटेंसिटी थोड़ी सी हाई होनी चाहिए, स्पीड थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। तो ये थोड़े से जो चीज़ें थी, जो कमी थी, टेक्निक्स एंड लाइक ऑल करता चला गया। करेक्ट। एंड देन इन 1-2 years I also beat Aparna Popat, who was then very popular name in Indian badminton, and उनको मारने के बाद ही मुझे लगा, एंड शी वाज वर्ल्ड नंबर 20-21 देन एट दैट पॉइंट। आई वाज लाइक यस, आई थिंक कुछ चांस है मेरा, आई कैन मे बी डू वेल एट द हाईएस्ट लेवल। एंड देन विदिन 1 year आई वाज इन द सीनियर कॉमनवेल्थ गेम्स एंड 2006 फिलीपींस ओपन में आई बीट वर्ल्ड नंबर 3 फ्रॉम Germany, Zhu Huiwen, and it was all then, the graph was going up, and I was beating the top players, and by then, when I was 18 in 2008, I played my first Olympics in the Beijing. The China one. Beijing, yes. Yeah. And in the quarterfinals, I just lost the match. I was leading 11-3 in the third. तो वो match मेरे हाथ से चला गया. After leading 11-3, just like I've never lost in my career. एक match भी ऐसा नहीं हारी. But वो दुख होता है उस match का बहुत अभी भी, क्योंकि I could have got my first medal in when I was Olympics. Yes. Maybe that triggered you to like, I don't know. Definitely हो सकता है। और मेहनत मैं मेहनत करती ही थी। I know that कि मैं मेहनत इतना करती थी कि मुझे इसलिए रिजल्ट्स आए ऑफ कोर्स। लेकिन रिजल्ट उस टाइम भी आ सकता था। उसके बाद भी ऑब्वियसली थोड़ा और फायर आ जाता है, थोड़ा सा और जोश आ जाता है कि और अच्छा करना है, नेक्स्ट ओलंपिक्स में तो लाना ही है। ऑल्दो मुझे मेडल आया नेक्स्ट ओलंपिक्स में, बट वो मेडल मिस करने का भी दुख बहुत होता है, क्योंकि वो बहुत क्लोज थे। मैं वो क्वार्टर फाइनल्स वाज वेरी वेरी क्लोज। राइट। नो, आई रेड दैट। इन फैक्ट what I read was the news coverage on that was that you shocked the world by going that far, and because क्योंकि वो ऐसा एक मैंने ओपन कर दिया था बैडमिंटन के लिए चांस, क्योंकि I was the one who was getting compared to Dhoni, in 2008, 9, 10 में I became world number 2. I won 3-4 Super Series titles back to back. So suddenly Saina Nehwal from badminton doing well, and only girl beating Chinese non-stop. So Saina versus China भी हो गया था। अच्छा। So yeah, the game just took off really well. Badminton became so popular suddenly. I never thought कि badminton player को भी endorsements मिलेंगे, sponsorships मिलेंगे. I will get help with so many good sponsorships. But I never thought that जब मैं 18-19 की हुई तभी मुझे मालूम था कि मेरे पेरेंट्स ने कितना स्ट्रगल किया मुझे इस गेम में। नथिंग इज मतलब आजकल सभी स्पोर्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। नॉट लाइक आपको 5-10,000 में कुछ नहीं हो रहा है आजकल। यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। तो आई गॉट टू नो कि पापा ने अपने फ्रेंड से बहुत लोन लिया, बैंक से बहुत लोन लिया। मुझे हर एक टूर्नामेंट में ही मेड श्योर कि कुछ टूर्नामेंट्स फ्लाइट से चली जाऊँ, ताकि टायरिंग कम हो, मम्मी साथ में रहे ताकि अटेंशन मिले पूरा। तो ये सब चीज़ें पापा ने ध्यान दी। मम्मी का भी एक गोल था। आई अंडरस्टैंड कि 9-10 साल के बच्चे को थोड़ा सा उतना यू कांट थिंक कि तुम्हें क्या बनना है या क्या अचीव करना है, बट आई थिंक यू नीड पेरेंट्स गाइडेंस देन। नहीं तो आज जो मैं हूँ, व्हाट आई डिड फॉर माई कंट्री एंड what I've been doing from so many years, only very few get this chance. और इतना अच्छा लगता है when you're standing on the podium, आप एक मेडल के साथ हो वहाँ पे अपने कंट्री के लिए। I mean it's so special, आप जैसे आर्मी जैसा फीलिंग आता है कि you're serving the country, देश के लिए कुछ कर रहे हैं। and I'm happy कि मैं उनमें से एक हूँ। तो कितने लोगों को ऐसे चांस मिलता है, and I'm so thankful to them कि उन्होंने मेरे लिए एक विजन रखा और मैंने
एंड आई वाज केपेबल इनफ टू प्रूव समथिंग, Yeah. और अच्छा कर सकी मैं अपने देश के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने कोचेस के लिए. तो आई फील वेरी वेरी गुड अबाउट इट. या No, I think you almost established badminton as a game, especially for women in the country. आपके पहले nobody knew a woman badminton player, or even for that matter, a good badminton player in that sort of era who was winning. You were the first one to win an Olympic medal. yes. उस जमाने से लेकर now, come to now, 2023 में, what do you think has changed in the sports का landscape? Like, how do you think 90s में आपने एक अलग दौरा, era देखा, where of course your parents provided a great environment for you, and you were very hardworking, you were exceptional. Yeah. But do you think कि over, say, the past 10 years, sports के लिए, देश में जो और लड़कियां हैं जो बैडमिंटन खेलना चाह रही हैं और any other game, you think उनके लिए environment और ज़्यादा positive या conducive हुआ है? Do you think that has happened? मुझे लगता है कि अगर मेरे आई डोंट नो मैं कहाँ तक सही हूँ, लेकिन अगर मेरे अलावा कोई और होता वो दौर में, तो शायद वो सोचता एक बार मैं क्यों ये स्पोर्ट खेलूँ, इसमें तो कुछ है भी नहीं, ना कुछ अर्निंग है ना कुछ है. मैं ऑब्वियसली मैं क्या सोचूं, मेरे पेरेंट्स सोचेंगे, बिकॉज आई वाज ओनली 9-10 देन. मुझे तो क्या व्हाट इज अर्निंग, व्हाट इज फेम, उस टाइम पे पता भी नहीं है मुझे वो सब चीज़ें. तो क्यों ऐसे पेरेंट्स करेंगे कि एक बच्चे को ऐसे फील्ड में डालेंगे जहाँ पे दे डोंट नो कि इसका फ्यूचर क्या है, आफ्टर 10th क्या होगा, आफ्टर 11th क्या होगा. अपने प्रैक्टिकली अगर सोचे तो इंडिया में होता ही ये 10th करो, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर करो, मतलब दैट्स अ सेफ थिंग, एंड इट्स रियली गुड. यू शुड डू दैट, क्योंकि वही चलते आ रहा है, एंड दैट्स मच मोर सेफर फॉर एनीवन टू डू. लेकिन उन्होंने सोचा, उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम. मैं अभी भी यही बोलती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं साइना नेहवाल बन सकी. मैं अपने लिए तो यही बोलती हूँ कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ. मैं आई कुड गो टू द लिमिट्स ट्रेनिंग के लिए, अचीव करने के लिए, येस. बट अभी मैं सोचती हूँ कि लास्ट 10 years में जितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, वी कैन सी लॉट ऑफ प्लेयर्स कमिंग इन, परफॉर्मिंग इन एवरी टूर्नामेंट. क्रिकेट के बाद बैडमिंटन हैज बिकम द सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट. इतने सारे स्पॉन्सर्स आर कमिंग अप, इतने सारे फाउंडेशंस आ रहे हैं टू हेल्प द स्पोर्ट्स पर्सन. पहले ये सब कहाँ था, इट वाज ऑल. अभी मैं सोचती हूँ तो यार उस टाइम पे मुझे ये सब चीज़ें होती, या मेरे सामने कोई ओलंपिक मेडलिस्ट या वर्ल्ड नंबर 1 ट्रेन करता, तो आई थिंक इट वाज मच मोर इजियर फॉर मी टू परफॉर्म एंड गेट रिजल्ट्स बैक टू बैक. बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपके सामने एक वर्ल्ड चैंपियन ट्रेन कर रहा है, आपके सामने एक ओलंपिक मेडलिस्ट ट्रेन कर रहा है, तो इट्स सो इजी टू तो उसको वो आपको लगेगा नहीं बहुत दूर, आपको लगेगा नहीं कि यार मुझे मेरे साइड वाले कोर्ट में कोई इतना बड़ा प्लेयर ट्रेनिंग कर रहा है, तो इट विल बी मच मोर इजी फॉर मी टू सी एंड लर्न ऑल्सो. क्योंकि गेम इज नॉट अबाउट ओनली हार्ड वर्क, यू हैव टू सी एंड लर्न ऑल्सो. तो वो अभी के एरा में लास्ट 10 years में अगर आप देखें तो इतना कुछ ईजी हो गया है प्लेयर्स को. रैकेट्स मिलना, शूज़ मिलना, काफ़ी किटिंग स्पॉन्सर्स भी बच्चों को बचपन से स्पॉन्सर कर रहे हैं 10-11 से, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. तो इट्स बिकम मच मोर ईजियर. एकेडमीज आ गई हैं, पहले ये एकेडमी भी नहीं थी. तो एवरीथिंग वाज सो टफ. आप आधे कोर्ट में ही मैनेज करना पड़ता था फॉर 2 hours, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स थे, बच्चे थे हम लोग, तो वो हमें चांस भी नहीं मिलता था कि एक पूरा कोर्ट मिले. अब तो यू हैव, if you are under 10 champion, you have a court for you for half an hour, 1 hour. Right. You're taken care, properly. आपको इंडिविजुअली ट्रेन करने के लिए कोचेस मिल जाएंगे. उस टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन उस टाइम वैसी सिचुएशन से निकल के एक चैम्पियन बनी मैं, तो मुझे अच्छा लगता है. हाँ, स्ट्रगल था, लेकिन अभी के लिए आई वुड से there is lot of support from so many sectors, and it's much more easier to perform and get results for sure. Okay. और ये इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि वी हैव द टैलेंट. इंडिया में टैलेंट बहुत है. अभी तक बस उसको हमने आई थिंक कहीं वो मे बी यूटिलाइज नहीं किया था या पुश नहीं किया था बच्चों को. बट अभी पेरेंट्स समझ रहे हैं कि क्रिकेट के अलावा और भी स्पोर्ट्स हैं जो अच्छा They can be very viable ways to live your life. I won't call it a job, but एक चीज़ अभी भी मिसिंग है, आई वुड से, कि स्कूल्स में थोड़ा और मैंडेटरी करना चाहिए. जैसे सिंगिंग और डांसिंग तो सबको ही करता है. आई फील सो व्हेन आई गो फॉर द एनुअल स्पोर्ट्स डे फंक्शंस, when I go for their sports day functions, I'm surprised. Everyone can dance, everyone can sing. बट ऐसा क्यों नहीं है कि स्पोर्ट्स मैंडेटरी है. स्पोर्ट्स शुड बिकम मैंडेटरी. तो अगर आप चाइना में जाओ और देखो, तो वहाँ पे हर एक स्कूल में एक बैडमिंटन या बॉक्सिंग या रेसलिंग की क्लासेस चलती रहेंगी, ताकि जो बड़े बड़े कोचेस हैं उनके रिस्पेक्टिव
स्पोर्ट्स से, दे गो टू द स्कूल एंड पिक अप द किड्स हु आर रियली टैलेंटेड और फ्रॉम देयर। यस, तो ऐसा कुछ और भी हमारे कंट्री में ओपन अप हुआ, तो देन आई थिंक इट विल बी मच मोर इजियर टू फाइंड प्लेयर्स, क्योंकि प्लेयर्स की कमी नहीं है। इनफैक्ट आई ऑल्सो गेट लॉट ऑफ मैसेजेस इन माई इंस्टा, अपना फेसबुक पे, सब जगह पे, दीदी आई वांट टू प्ले, आई वांट टू डू वेल, कहाँ से मैं रैकेट खरीद सकूँ, कहाँ पे जाके मैं ट्रेनिंग कर सकूँ। इतने सारे जो बच्चे हैं उनका ड्रीम तो ऐसे ही मर जाता है, क्योंकि दे डोंट इवन हैव अ प्लेस टू प्रैक्टिस, यू नो। एंड नॉर्थ इंडिया में तो आई वुड से, यू नो, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इतना टैलेंट है, लेकिन वहाँ पे इतने एकेडमीज नहीं है जितना अपने साउथ में है। या व्हाट डू यू थिंक, इसमें सरकार का क्या रोल रहा है? डू यू थिंक दैट, ऑफ कोर्स पीपल अंडरस्टैंड कि मोदी गवर्नमेंट के लिए स्पोर्ट्स, प्रमोटिंग स्पोर्ट्स हैज बीन अ बिग सॉर्ट ऑफ प्रायोरिटी, बट अगर हम उसको एक्चुअली समझना चाहें, बिकॉज यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, you are the best litmus test to tell us कि what exactly is the impact. So how would you describe कि जो गवर्नमेंट के efforts रहे to promote sports, how far वो ग्राउंड में इम्पैक्ट दिखा रहे हैं या इस तरह के टैलेंट को इनकरेज कर रहे हैं कि वो आए? आई थिंक मोदी गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने जो लास्ट फ्यू ईयर्स में देखी थी, उनके जो स्कीम्स है, आई थिंक एक ही स्कीम ऐसा नहीं है जो आपको टूर्नामेंट भेज रहा है या यू नो सपोर्ट कर रहा है। वो एक है ऑब्वियसली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 2-3 अदर स्कीम्स एज वेल, यू नो। आप जैसे टॉप स्कीम हो गया है, जैसे टारगेट ओलंपिक पोडियम, वो वाला, एंड देन खेलो इंडिया, ये 2-3 स्कीम है जो है जो है बहुत ही अच्छे, बिकॉज हम हमारे लिए तो लास्ट फ्यू ईयर्स से जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने इतना सपोर्ट किया हमें। यू नो, इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग, प्लेयर्स को 2-3 टूर्नामेंट भी नहीं मिलते थे खेलने के लिए, क्योंकि इतना एज अ साइड ना कि इतने रिजल्ट्स नहीं आते थे, तो आई डोंट थिंक वो फंडिंग भी उतना होता। बट आई डोंट नो, समहाउ ऐसा स्टार्ट हो गया कि द गवर्नमेंट स्टार्टेड थिंकिंग कि प्लेयर्स को खेलने के लिए भेजना चाहिए ताकि दे विल गेट एक्सपीरियंस, एंड तभी तो रिजल्ट आएगा। प्रैक्टिस द मैचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअल मैचेस, इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रेनिंग तो कहीं भी हो जाएगा, लेकिन मैचेस व्हाट इट्स रियली गोइंग टू यू नो हेल्प यू टू लर्न कि कैसे इम्प्रूव करना है, कहाँ वो प्लेयर मुझसे बेटर है, क्यों वो वर्ल्ड नंबर 1 है, क्यों मैं वर्ल्ड नंबर 100 हूँ। तो ज़्यादा मैचेस खेलने से ही वो मिलेगा। एंड आई थिंक जब से ऑब्वियसली मोदी गवर्नमेंट आई है उसके बाद तो बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स में अपॉर्चुनिटी मिल गई है। ऐसा तो मैंने कहीं सुना ही नहीं कि वो बोलते हैं कि हम नहीं भेजेंगे आपको। ऑलमोस्ट 20-24 टूर्नामेंट्स है, सभी प्लेयर्स जो भी टॉप 50 में है दे गेट द चांस टू प्ले एवरी टूर्नामेंट। आई थिंक दैट्स व्हाई एज आई सेड रिजल्ट्स आर कमिंग, रिजल्ट्स आर कमिंग इन एवरी टूर्नामेंट, तो इसलिए वो सपोर्ट और भी बढ़ता गया। एंड खेलो इंडिया जो टॉप स्कीम है वो जूनियर बच्चों के लिए भी है जो अंडर 19 के हैं, और जो अबव 19 है जो अच्छा कर रहे हैं उनको दे आर प्रोवाइडिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जो सप्लीमेंट्स हो गए, कोचेस हो गए, फिजियोज हो गए, ट्रेनर्स हो गए। व्हेन आई टिल जब 18-19 तक मैं थी, मुझे ये सब स्कीम नहीं था। मुझे आई यूज्ड टू फील सो, यू नो, मुझे बुरा लगता था कि काश ये मेरे भी अपकमिंग ईयर्स में होता तो कितना ईजी है, यू नो। यू गेटिंग यू नो, इफ यू वांट अब्रॉड से कोई ट्रेनर चाहिए, अब्रॉड से कोई फिजियो चाहिए, तो वो सब रिक्वायरमेंट्स पॉसिबल है, वो पहले पॉसिबल नहीं थी। तो मैं आई कांट थैंक देम इनफ बिकॉज दे आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट के हमें cricket is a sport where they can actually take care of themselves. They're so good. You know, the association is so good that they have made the structure like that कि किसी को कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। बट हमारी गवर्नमेंट जो है अभी वो सोच रही है कि कैसे प्लेयर्स का और डिफरेंट स्पोर्ट्स को हम ऐसा बनाएं जो वो अपने ही सेल्फ सस्टेनिंग बन सकते हैं, और उसके साथ साथ उनको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। राइट, फाइनली एक प्लेयर का जो करियर, यू नो, वंस दे रिटायर एंड वंस दे फिनिश प्लेइंग, ऐसा होना नहीं चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश मेरे पास वो होता, काश मेरे पास ये होता। तो आई थिंक समवेयर दे ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे हम एक प्लेयर का जो करियर है वो कंप्लीट कर सके विद ऑल these things, and I'm really happy कि जो हमारे upcoming players है they're getting all this you know जो schemes का जो help है वो मिल रहा है, plus as I said foundations, Olympic Gold Quest Foundation, Go Sport Foundation, Reliance Foundation, and I think Virat Kohli Foundation. There are so many foundations now who are helping players from different sports. Right. तो इसलिए हमें you know we can see कि Asian Games में इतने medal आए, Commonwealth Games में इतने medal आते हैं, फिर ओलंपिक्स में भी बहुत मेडल। बड़ा डिफरेंट है, पहले तो कोई पहुंच जाता था ओलंपिक्स तक, that itself was a big deal, and now people are like, अच्छा कौन सा वाला मेडल आया? Yes, that expectation. So now it's the topic is now कि मेडल क्या आएगा? You know, it's not like यार खेल रहे तो क्या, you know, पार्टिसिपेट तो इतने सारे प्लेयर्स कर ही लेते हैं, बट फाइनली
क्योंकि मैंने अभी ये मेंशन किया था कि हमारे पास टैलेंट है, इट्स जस्ट दैट कि हमें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था पहले, बट अभी सपोर्ट मिल रहा है, अभी सब कुछ वॉट एवर वी रिक्वायर इज देयर। इट्स जस्ट दैट कि वो प्लेयर्स से फोकस, प्लेयर्स का जो डेडिकेशन है वो अभी तो बस वही चाहिए, और बाकी चीज़ों का कुछ वो टेंशन ही नहीं है। देयर इज नो टेंशन एनीमोर, इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें रिजल्ट लेके आना है। एंड आई थिंक द गवर्नमेंट इज डन दैट रियली वेल कि फाइनली प्लेयर ऐसा बोले ना कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। देयर इज एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट अवेलेबल नाउ, बट इट्स जस्ट दैट कि प्लेयर का 100%, आई थिंक 200% चाहिए बस अभी जगह वो रिजल्ट लेके आ सके। और आई थिंक इसलिए ही रिजल्ट्स आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एंड वी जस्ट नीड के थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन वी जस्ट नीड मोर अकेडमीज, वी नीड मोर कोचेस। एंड अभी असम में भी बहुत बड़ा एकेडमी खुला है, एंड देयर आर ऑल्सो फ्यू गुड इंटरनेशनल कोचेज हु आर कमिंग इन। तो ऐसे ही थोड़े से और एकेडमीज बन जाए तो आई एम श्योर बैडमिंटन कैन बी यू नो वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम इंडिया। राइट। आई मीन यू आर राइट। आई मीन एक ज़माना था वेर मतलब अगर बच्चा खेलना चाहता है लाइफ में तो मतलब क्रिकेट ही खेलेगा, देयर वाज नो अदर लाइक, मतलब आप उसको प्रोफेशनल नहीं बना सकते हैं, यू दे डोंट हैव एनी थॉट कि इसमें हम करेंगे क्या, यू नो आफ्टर 18-19 क्या होगा मेरा, यू नो इट्स गोइंग टू बी टफ डिसीजन टू मेक फॉर यू प्लस पेरेंट्स। यू नो लकीली मैं हमारे घर में एटलीस्ट वो टॉपिक आया नहीं, क्योंकि आई वाज परफॉर्मिंग, आई वाज you know 10th तक भी I was very good, and 11th 12th Papa was like do whatever, but I just want you to you know work hard, do well, you're doing very well. They didn't put extra pressure, but they were always very supportive. At the same time they knew कि ये कुछ कर सकती है because she is very dedicated to her work. So they never forced me to कि आगे जाओ, आगे करो, पढ़ाई करो, ये करो, तो उतना प्रेशर नहीं था, but they definitely were like अच्छा खेलो, do well, you're doing well. तो वो सब चीज़ें मेरे को बहुत ही अच्छी लगती थी कि मैं जो चीज़ में मुझे इंटरेस्ट था मुझे उन्होंने उसी चीज़ में push किया। Yeah. What do you think about women in sports? Do you think it is the best time, so to speak, to be a woman sports person in India? Time is the best for anyone, I would say, not only women, but men के लिए भी। This is the best time because the results are coming back to back. Yeah. तो अभी कोई भी गेम चूज करेगा, there's I think ऐसा you don't have you know you don't have to think two things कि मुझे पढ़ाई करनी है या वो करना है। If you're into the sport, you have a lot of things now, a lot of options are opening. Focus on this and move in that direction. Yes. तो ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ वुमेन के लिए, but also for men. This is the golden era, I would say, कि इतने सारे रिजल्ट्स आए, वर्ल्ड नंबर 1 हो चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियन हो चुके हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हो चुके हैं। तो there is no way anyone has to think twice before entering the sport, I would say। बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो गया है। एंड स्पेशली जैसे वुमेन के लिए बोल रहे हैं आप, काफ़ी लड़कियां मुझे आके बोलती हैं कि दीदी मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है, वर्ल्ड नंबर 1 बनना है, तो जो द टारगेट इज ऑल्सो रियली बिग नाउ। या तो ऑब्वियसली बॉयज भी काफ़ी आते हैं मुझे बोलते, बट गर्ल्स का तो इंटरेस्ट अनदर लेवल है। अच्छा। दे आर लाइक ओह माय गॉड, दे आर लाइक दीदी मुझे आप कौन सा रैकेट यूज़ करते हो। आई वाज लाइक यार वो टाइम पे आई यूज्ड टू यूज छोटा सा जो भी रैकेट था, बट दे आर यूजिंग द बेस्ट रैकेट, दे आर यूजिंग द बेस्ट शूज। तो टारगेट भी उतने बड़े हो गए हैं, प्रेशर भी बहुत बढ़ गया है। इट्स नॉट दैट, मैं ये नहीं बोलूँगी प्रेशर जैसे उस टाइम पे थोड़ा सा, फिर भी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वेयर आई एम गोइंग फ्रॉम हियर। अभी क्या है, सब पेरेंट्स को एवरीवन नोज कि शायद इसको हम वर्ल्ड चैंपियन बना सकते हैं। एक्सपेक्टेशन पूरी वैसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई है थोड़ी, उस टाइम पे इतना नहीं था, बट आई एम श्योर दे विल यू नो कोप वेल विद इट इफ दे रियली वांट टू अचीव, दे रियली वांट टू डू वेल। काफ़ी बच्चों को मैंने देखा थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं बिकॉज द प्रेशर इज सो मच। तो मैं जब कभी टूर्नामेंट्स देखती हूँ छोटे बच्चों का, व्हेन दे प्ले, तो कभी कभी लगता है कि थोड़े प्रेशर में खेल रहे हैं, वही है कि जीतना है। तो वो मुझे थोड़ा सा लगता है, बट आई थिंक बट टाइम जैसे ऑब्वियसली सब स्पोर्ट में रहेगा, वो क्रिकेट में भी आप 11 प्लेयर ही खेलेंगे इंडिया के लिए, तो इट्स नॉट ए इजी थिंग टू डू, यू नो। थोड़ा प्रेशर तो लेना ही पड़ता है एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, यू हैव टू लिव विद प्रेशर एंड सम काइंड ऑफ टेंशन तो रहते ही हैं, क्योंकि आपको पूरे साल में आपको इतने सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे कि तो प्रेशर तो एवरी मिनट रहेगा। तो देयर इज नो वे यू कैन अवॉइड दैट। हाउ डू यू कंट्रोल दैट? डू यू प्रैक्टिस सम सॉर्ट ऑफ माइंडफुलनेस, योगा? आई डोंट नो, मतलब डू यू डू दैट? हाउ डू यू कीप योरसेल्फ? देखिए मैं ये डेफिनेटली बोलूँगी कि अगर आपका माइंड थोड़ा ज़्यादा चलता है, इफ इट इज़ लिटिल बिट मोर हाइपर माइंड, तो आपको करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप स्पोर्ट खेल रहे हैं, जैसे आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी, इफ़ यू हैव टू रियली काम इट डाउन, तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। इट्स वन ऑफ द बेस्ट। मुझे क्या, मैं आई थिंक आई वाज नेचुरली वेरी स्ट्रांग मेंटली, यू नो। मुझे
ज़्यादा किसी चीज़ का भी मतलब ज़्यादा मुझे किसी ने कुछ डांट नहीं मारा अच्छा ट्रेनिंग करने के लिए, एंड किसी ने मुझे ज़्यादा शाबाशी भी दे लाइक ठीक है अच्छा यू वेरी प्राउड ऑफ यू, ऐसा किसी ने बोला नहीं, क्योंकि दे न्यू कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। इनफैक्ट व्हेन आई वाज 9 और 10 मेरे कोच ने ही पुट माय नेम एज वर्ल्ड चैंपियन फोन में ना, मैं आई वाज लाइक ये क्या लिख रहे हैं ना, मुझे पता भी नहीं कि वर्ल्ड चैंपियन क्या होता है, मायने क्या है व्हाट इज दिस, बट दे थॉट कि इसका कुछ फ्यूचर है, पोटेंशियल है, उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया। तो मुझे लगता है कि बस ये बिलीफ था मेरे अंदर कि मुझे बस अच्छा करना है, मेरे पेरेंट्स मुझे पुश कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ अगेन आई वुड से लकीली हो गई एंड डेस्टिनी भी होगा शायद मेरा, बट मेडिटेशन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, क्योंकि आजकल एज ए स्ट्रेस बढ़ गया है ज़्यादा, एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं बच्चों से। हर एक टूर्नामेंट आई थिंक पेरेंट्स चाहते हैं कि वो हर एक टूर्नामेंट जीत के जिसमें वो एंटर हो रहे हैं। तो आजकल के आई थिंक थोड़े से अभी का जो जनरेशन है जो 8-9 ईयर्स के हैं, आई थिंक उसी टाइम से मेडिटेशन शुरू हो जाना चाहिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म में उनको लगे ना कि ये कुछ नया है। राइट, अगर आप 8-9 साल में इस बच्चे को थोड़ा बहुत ऑब्वियसली थोड़ा डांटना तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर वो सीख गया देन द फ्यूचर इज़ वेरी गुड, वो फिर वो स्ट्रगल नहीं करेगा कि मुझे क्या करवा रहे हैं। आफ्टर 15-16 इट गेट्स लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन आप बचपन से उनको मेडिटेशन, राइट फूड, राइट काइंड ऑफ आप उनको एडवाइस देंगे कि यू हैव टू वॉच द मैच, यू हैव टू कीप विजुअलाइजिंग इट, एंड अगेन आई वुड से 50-60% तो स्ट्रेस वैसे भी कम हो जाएगा। राइट माहौल में रहोगे तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। द सराउंडिंग मैटर्स अ लॉट। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कोच के साथ, अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ हो जो हमेशा आपको राइट पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, तो आप उन्हीं के साथ रहिए। कभी कभी आपको लगेगा यू विल गेट दैट फीलिंग, यार ये शायद जो पर्सन मेरे साथ है वो मुझे शायद ठीक नहीं लग रहा है, वो बातें भी आप महसूस कर लेंगे कि शायद आपको नेगेटिव वाइब आ रही हैं। तो एज ए प्लेयर अगर आप उसको कट कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि स्ट्रेस एज ए सेट के इतने सारे टूर्नामेंट्स रहते हैं तो वो स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा। देयर इज़ नो वे यू कैन अवॉइड इट। आप मेडिटेशन करके काफ़ी कम कर सकते हैं, बट द मोमेंट यू एंटर द कोर्ट वो फिर से आपको जो फीलिंग है दैट विल कम, दैट इज़ फॉर अ प्लेयर इट्स नेचुरल, लेकिन यू हैव टू फाइट विद इट ऑन द कोर्ट, यू हैव टू फाइट विद इट, एंड दैट्स अ प्लेयर्स लाइफ एंड यू हैव टू डील विद इट। बट उसको कंट्रोल करने के वेज बहुत सारे हैं, एंड इट इज़ पॉसिबल कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। So हार जीत की बात हुई, so one of the things that as an audience I've noticed that Prime Minister Modi always meets all players who are representing the country. वो मेडल लेकर आ रहे तो भी, और अगर वो हार भी जाए तो भी। And of course हम लोग तो भाई श्रोतागण हैं, and audience है like this is so nice, you're promoting sports and spirit, but as a player, like what do you think कि जो अभी budding young players है, do you think this plays on to their psyche, like how do जो budding players है, them looking at Prime Minister congratulating every player whether they win or lose and sort of encouraging them to play, do you think that sort of impacts the way budding players look towards sports? And I feel first of all मोदी सर का मुझे I was really जब मैं देखती थी उनको कि हर एक प्लेयर को वो मेंशन कर रहे हैं, उनका स्कोर लाइन मेंशन कर रहे हैं, एंड हाउ ही प्लेड द मैच, उनको समझा रहे हैं कि आपने अच्छा खेला। तो मुझे लगता था यार इतना टाइम मिलता कैसे होगा कि मैच देख भी लिया है, एंड देन ही इज ऑल्सो टेलिंग कि आप ये ठीक करते या आपसे वो गलत हो गया है। सो ही इज़ वेरी अप टू डेट इन ऑल दी थिंग्स विच आई एम श्योर इंटरेस्ट तो होगा, तभी तो स्पोर्ट्स में इतनी डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। तो इट फील्स सो गुड दैट ही नोज एवरीवन बाय नेम, एंड देन व्हेनेवर ही मीट्स अस ही ऑलवेज इज टेलिंग अस कि तुम्हें वो पसंद है, तुम्हें वो नहीं पसंद है, वो हमारी पसंदों के बारे में भी पता है उनको। सो इट्स वेरी स्पेशल दैट सच अ स्ट्रॉन्ग लीडर, ही नोज एवरीथिंग about you, and he is supporting you every tournament, he is looking at you, and आपको और भी you feel like यार कंट्री का सबसे बेस्ट पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है, एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, एंड ही नोज यू हैव टू डू इवन मोर बेटर। आपको और भी एक्चुअली वो फायर आ जाता है कि और अच्छा करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। ऑब्वियसली मोदी सर तो whatever time he can give us, he's definitely calling us after we are winning every tournament. We are there with him, we're celebrating the win with him, and but for imagine कि कितना उनको
आजकल ऐसा फीलिंग आ गया है कि हम भी इम्पोर्टेंट है. पहले ऐसा वी डिडंट नो, एज आई सेड ना, कि मुझे पता भी नहीं था कि हमारे कंट्री में कौन ऐसे बैडमिंटन प्लेयर है जो अच्छा करते हैं. मुझे पता भी नहीं था प्रकाश सर के बारे में या गोपी सर के बारे में. ऑब्वियसली आई स्टार्टेड प्लेइंग देम, सो आई न्यू कि वो कोई है जो कुछ जीत गए हैं, लेकिन उनके बारे में मुझे पता भी नहीं था. तो अभी तो यंगर जनरेशन दे नो कि एवरीडे टीवी पे आ रहे स्पोर्ट्स पर्सन, देयर मीटिंग प्राइम मिनिस्टर सर एंड दे आर एवरीडे टीवी पे मैचेस आ रहे हैं. तो देयर सो मच यू कैन लर्न, देयर सो मच, एंड इट गिव्स यू, मतलब क्या उसको एक बोलते हैं ना कि मुझे भी प्राइम मिनिस्टर से मिलना है. इट फील्स लाइक मुझे भी अच्छा करना है कुछ अपने भी. इट्स नॉट ओनली स्पोर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी फील्ड. आपको फिर हर एक फील्ड में अच्छा करने का मन करता है कि मैं भी उस पोजीशन पे रहूं. मुझे भी कुछ ऐसा कंट्री के लिए कुछ करना है, गेट अ चांस टू. तो कितना अच्छा फीलिंग होता है. एंड देन फाइनली जब स्पोर्ट्स इतने अच्छे एरा में है, एज आई इट्स अ गोल्डन एरा वेयर यू कैन सी कि हर एक स्पोर्ट को वो इम्पोर्टेंस मिल रहा है, एंड हर एक स्पोर्ट रिजल्ट लेके आ रहा है. इट्स नॉट ओनली बैडमिंटन, बट आई एम सो हैप्पी टू सी कि हर एक ओलंपिक्स में हम एटलीस्ट 4-5 मेडल्स से साथ वापस आ रहे हैं. तो उससे ही मालूम होता है कि कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है. ज़्यादातर लड़कियां ही हैं, ज़्यादातर लड़कियां अच्छा कर रही हैं. तो आई एम सरप्राइज एंड आई एम सो हैप्पी कि और भी ऐसे हमें स्पोर्ट्स पर्सन चाहिए, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि हम इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे लोग हैं जो खेलना चाहते होंगे, अभी भी मिस आउट कर जाते हैं. लेकिन आफ्टर इतना इम्प्रूवमेंट होने के बाद आई एम श्योर एवरीवन वांट्स टू प्ले, एवरीवन वांट्स टू डू वेल. तो इसलिए बस वो थोड़ा सा और सपोर्ट आई थिंक ऑफ अकेडमीज, गुड कोचेस, गुड ट्रेनर्स चाहिए. एंड देन आई एम श्योर we are everywhere, then the sports persons are doing extremely well. You mentioned Khelo India. To someone who is not a player, how would you explain to me ki what exactly does Khelo India do to promote sports in the country? खेलो इंडिया आई थिंक एक ऐसा चीज़ है जो मैंने आपको समझाया था. चाइना में जैसे बड़े बड़े कोचेस हर एक स्कूल में जाके वो टैलेंट को ढूंढ के लेके आते ताकि वो अपने एकेडमी में सिखा सके उनको विच एवर स्पोर्ट दे आर इन. ऐसे ही खेलो इंडिया इज़ लाइक अ टूर्नामेंट जहाँ पे हर एक जो यंग बच्चे हैं वो अपना टैलेंट दिखाते हैं. देन हुएवर विंस, और जो आई थिंक मे बी क्वार्टर्स या सेमीज तक खेल रहे हैं, उनको वो सपोर्ट मिलता है खेलो इंडिया से. एंड दे गेट दैट काइंड ऑफ आई थिंक फाइनेंशियल सपोर्ट जो है कुछ टूर्नामेंट्स के लिए, उनके सप्लीमेंट्स के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, वो उनको आई थिंक हेल्प मिलता है उससे. एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग. वो पहले नहीं था. ये जो अब बना है, इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ एनी यंगस्टर जो भी है जो देख रहा है कि मुझे एक प्लेयर बनना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ओपनिंग है वो. It's a very good as you said, it gives you an opportunity to actually play matches. That is right, but at the same time you will get all kind of help, support also you're getting कि आप और भी कुछ जो भी आपको चाहिए अपने स्पोर्ट में, उसका भी हेल्प आपको मिल रहा है. जी, got it, understood. And what about top scheme? टॉप स्कीम इज आप ऑलरेडी एक बड़े प्लेयर हैं, आप टॉप 50 में हैं, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपको और बेटर बना सकता है. लाइक इफ यू आर ऑलरेडी इन टॉप 10 and you want to be number 1 in the world, तो उसके लिए आपको जो चाहिए, top scheme is there to help you out with that. Okay. For established players too. To be the best, I would say, to be the best, whatever you require. You need 1 coach, 2 coach, you need 2-3 trainers, you need whatever you require. Okay. They are there to help you out with that. So top scheme is basically that for I think fewer players. For fewer players. एंड जहाँ तक बैडमिंटन कंसर्न है, बिकॉज आई नो दैट कि काफ़ी जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको ही वो सपोर्ट मिलता है. बट खेलो इंडिया इज़ अनदर थिंग वेयर यू गेट सपोर्ट फॉर ऑल द यंगस्टर जो अपकमिंग है, उनको मिल रहा है. एंड टॉप स्कीम आई थिंक अंडर 19 कैटेगरी में भी हैं जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, तो उनको भी सपोर्ट मिल रहा है. तो देयर इज नो वन लेफ्ट, एक्चुअली सबको ही देख रहे हैं. वो जो अपकमिंग है उनको भी देख रहे हैं, और जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं जो अच्छा कर रहे हैं उनको बेस्ट होने के लिए क्या रिक्वायर है, वो टॉप स्कीम एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो साथ में मिलके ऑफ कोर्स गवर्नमेंट से जो सपोर्ट मिल रहा है वो साथ में है. जी, ओके. सिंस यू स्पोक अबाउट टॉप 5, टॉप 10, जी, अगर हम टॉप 5 करंट एरा में टॉप 5 इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, एंड सपोज तेंदुलकर इज नंबर 1, सपोज, do you see yourself in that top 5 list, like the best sports person, forget sportswoman, best sports person that India has produced? I would like to believe that, क्योंकि मुझे लगता है क्रिकेट में we already had few big names. पहले भी थे. Sachin sir is obviously a big name. Hats off to, you know, he's achieved so much, he's done so much for his sport, and
But we had quite a few players before Kapil sir World Cup जीते हम लोग. World Cup is the, you know, once you win the World Cup, then you already know कि हम World Cup जीत सकते हैं. हाँ. So you have that confidence in you कि हम कुछ कर सकते हैं. And Sachin sir carried it on, and then the many other players in cricket who's done extremely well. But badminton में कौन? You know, ladies में कौन? कोई भी Especially there was nobody. I think you were the first name that anyone in the country knew, or the world. And I became लड़कियां भी बैडमिंटन खेलती हैं and जीत सकती हैं. You know, I became world number 2 in 2010. 2009 में I was already world number 2 end में. Yeah. तो from nowhere we didn't even have anyone like in top 25 also. हाँ. तो मैंने जाके world number 2 achieve किया. So I would like to believe कि मैं वो top 5 में हूँ because I could change the course of badminton. Yeah. And then everyone was comparing Saina versus China. I mean, that's huge compliment. China was the best and is always the best. Yeah. क्योंकि उस टाइम पे अगर आप देखा जाए तो top 10 में me and there was one Denmark girl and all of them were Chinese. मतलब आप top 10 में 2 ही player बाहर के हैं और बाकी सब Chinese हैं. हाँ. तो आप क्या समझोगे उसको? हाँ. It was so difficult. तो उसमें मुझे बोलते थे Saina was China हो रहा है और Saina China वालों को मार रही है most of them. Because मैं at least as far as I remember कि कोई ऐसा tournament रहा नहीं है जहाँ पे मैं क्वार्टर फाइनल से पहले हारी हूँ. इट्स ऑलवेज बिन क्वार्टर सेमीज फाइनल्स और विनर. राइट. तो ऐसा कहीं टूर्नामेंट रहा नहीं है. तो कितने चाइनीज को मैंने हराया होगा और कितने बार यू नो उनके साथ मैंने मैचेस खेले होंगे. एंड आई गॉट बैडमिंटन टू अ स्टेज वेयर पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि अब हम अचीव कर सकते हैं. यू नो आई वुड लाइक टू बिलीव कि ऐसा मैंने एक चेंज लाया है बैडमिंटन में. तो बाकी तो ये लोगों का प्यार है. अगर मुझे वो टॉप 5 में कंसिडर करते हैं देन इट्स रियली रियली गुड एंड बिग. But I could change the scene of badminton is what I'm proud of. इतनी सारी जो लड़कियां हैं, इतने सारे जो बच्चे हैं वो खेलना चाहते हैं स्पोर्ट और अब इतने सारा अचीवमेंट हमें आ रहा है स्पोर्ट में. तो आई थिंक मैं उसका एक हिस्सा हूँ एंड आई फील सो प्राउड ऑफ दैट. और हम अपने यू नो फाइनली मुझे एक मौका मिला कि मैं कंट्री के लिए कुछ कर सकूँ. आई थिंक इट्स अ ड्रीम. यू नो व्हेनेवर आई मीट people who are serving the country, I think उससे बड़ा मुझे कुछ चीज़ लगती नहीं है. And I'm happy कि मैं I'm one of them. Yeah. So you have touched that chord of serving the country. Yes. मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड चैम्पियन बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल, आपने क्या सोचा and what did you think or rather why did you join BJP? What was in your mind? What was your inspiration? Who inspired you? What exactly appealed to you कि यार मुझे BJP join करनी चाहिए? lot of people are supporters. मन ही मन में रखते हैं या नहीं रखते हैं. But very few people in their active era take a step कि yes, I want to join BJP and yet continue doing what I'm doing. So basically 2020 में मैंने ज्वाइन किया था BJP को with my sister. And it was all because of Modi sir. You know, he is such a great leader and उनका एक charm है. He's whenever he talks or whatever he's you know टेलिंग इन द स्पीचेस एंड जो भी वो कंट्री के लिए कर रहे हैं एक अलग ही अंदाज है. यू नो इट फील्स सो नाइस टू सी कि समवन इज वर्किंग सो हार्ड. उनका आई वुड से आई एम लाइक अ फैन. मुझे अच्छा लगते हैं जो भी उनका जो वर्क है, उनका जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स वर्क. जैसे हम एज आई सेड, यू नो मैं इतना मेहनत करती थी अपने गेम में कुछ अच्छा अचीव करने के लिए. एंड आई लव पीपल हु वर्क हार्ड सो मच एंड यू नो ट्राई टू डू समथिंग to change, you know, to get that change. And अब कोई लीडर इतना पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, ऐसा ही तो नहीं बन जाता है कोई. You have to really work very hard to become so popular. And I see that in him. He's working 24/7. आज इधर है तो कल कहीं और है. And he's again there up full fresh, giving those kind of, you know, मतलब ऐसा काम का जो मोटिवेशन है उनका तो वो अलग लेवल का है. एंड ऑफ कोर्स यू नेवर नो, एज आई सेड कि मैं एक प्लेयर भी बनी क्योंकि आई वुड से डेस्टिनी था तो मैं उधर चली गई. अब शायद इसमें मैं आना चाहती हूँ तो मे बी शायद डेस्टिनी हो कि मैं इधर आऊँ बिकॉज आई एम स्टिल प्लेइंग. मुझे फाइनली फर्स्ट लव इज़ ऑलवेज द गेम. तो जब तक हो सके आई विल ट्राई टू कंटिन्यू इट. लेकिन एंड आई लाइक टू सर्व. जैसे मैंने कहा मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला टू सर्व द कंट्री. तो कंट्री के लिए कुछ भी अच्छा कर सके, टू डेवलप एंड टू डू वेल, why not? You know, it will be another opportunity to do something for the country. And बस इसीलिए you know I joined it. और कुछ ज़्यादा मैंने सोचा नहीं. मोदी जी did the magic. कुछ ज़्यादा political मैं सोचती नहीं हूँ. Just अपने country के लिए अच्छा करना है. To just do well and
हमेशा जस्ट बी एक्टिव एंड जस्ट कीप फॉलोइंग योर वर्क, वही मुझे पसंद है. एंड ही इज डूइंग दैट. एंड बस और अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं. आफ्टर द गेम मे बी जब मैं गेम को छोड़ूंगी, मे बी आई जस्ट थिंक अबाउट something else, but at the moment it's only Modi magic. Oh, it's only Modi magic. Okay. No, I mean, 5 years from now, 10 years from now, whenever you want to move towards public life, political life, so will it be Telangana, Andhra Pradesh ki taraf focused, or more towards back in your roots in Haryana or UP? Like, where do you see your... That's a difficult question. Actually, I also never thought about it. But कहीं भी आप अच्छा करेंगे अपने किसी भी जगह को बेटर करना चाहेंगे, वो कहीं भी हो सकता है. यहाँ पे तेलंगाना में हो सकता है, या हरियाणा में हो सकता है, या कहीं भी कोई भी स्टेट हो. फाइनली दिल में क्या है, आपको अच्छा करना है. आई हैव टू, जब इंडिया इतना प्रोग्रेस कर रहा है तो उसको और प्रोग्रेस करने के लिए जो भी मेरा थोड़ा बहुत हो सकेगा, मैं ट्राई करूँगी. इट्स नॉट ईजी, it will be totally different field. Because sports mein is very easy, you're just going out there, you're working hard. It's not easy. Maybe for a champion it is. मतलब हमारे लिए एक ही हमें लगता है कि हम हार्ड वर्क करें और अच्छा खाए और सो जाए, बस इतना ही रहता है हमारा, और अच्छा से खेलें. बट पॉलिटिक्स इज टोटली डिफरेंट थिंग. यू हैव टू सिट एंड थिंक कि आप करना क्या चाहते हैं. तो मैं अभी तो ये इजीली बोल सकती हूँ आपको कि मुझे उस स्टेट को बेटर करना है, या मुझे उस स्टेट को बेटर करना है. बट फाइनली व्हेन आई कम इनटू इट, तभी समझ में आएगा कि और मैं कैसे क्या कर सकती हूँ. बट अभी तो मुझे लगता है कि आई लाइक टू सी कि जो चल रहा है धीरे धीरे, आई वुड लाइक टू लर्न कि कैसा होता है उसमें, क्योंकि टोटली डिफरेंट फील्ड हो गया है. कहीं भी मौका मिले मुझे बेटर करने का, तेलंगाना हो या हरियाणा हो या कहीं भी, मुझे आई वुड लव टू डू इट. So it's a big statement that you has made, as a sports person, joining BJP, joining a political party, and you're still playing. What's your do you have any message for other co-sports person who might ask you ki bhai, as a sportswoman, how can an active sportswoman contribute to the nation by being part of a political party? आप अपनी तरह से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. अभी तो ऑब्वियसली मैं एक फील्ड, 2 फील्ड, 3-4 चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते. तो इन व्हाट वे बचपन से जैसे मैं करते आई हूँ, मैं वही कर सकती हूँ फॉर नाउ. लेकिन मैं दूसरों को ऑब्वियसली फोर्स नहीं कर सकती हूँ कि आप इसको भी करिए. पॉलिटिक्स इज लाइक अ चॉइस. इट कैन नॉट जस्ट हैपन कि आप करो. इट्स अ डिफिकल्ट फील्ड. यू हैव टू कीप योर माइंड वेरी स्ट्रांग. यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन पॉलिटिक्स. यू हैव टू, जैसे मैं देखती हूँ और जैसे चल रहा है, इट्स नॉट ईजी टू बी इन पॉलिटिक्स. बट आपको आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है. आप अगर उसको ले सकते हैं तो मैं तो यही बोलूँगी कि जस्ट गो विद योर फीलिंग. आपको फाइनली अगर पॉलिटिक्स में आपका कुछ लगता है कि आप कर सकते हैं, यू वांट टू डू वेल फॉर योर कंट्री लेटर ऑन इन अ डिफरेंट फील्ड, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए विच एवर पार्टी यू फील. मैं उनको फोर्स नहीं करूँगी आप बीजेपी में ही आइए, क्योंकि मुझे पर्सनली मोदी सर बहुत पसंद है, मुझे उनका वर्किंग स्टाइल पसंद है. तो शायद मुझे उनकी तरफ ऐसा लगा कि मुझे बीजेपी में आना चाहिए ना. आई फेल गुड अबाउट इट. बट दूसरे लोगों को भी मैं यही बोलूँगी कि आपका जो मन करता हो, आपको वेदर इट इज़ बीजेपी और वेदर इट इज़ विच एवर पार्टी यू फील आपको लगे, अपने कंट्री को इम्प्रूव करने के लिए ऑब्वियसली आपको सोचना चाहिए क्या कर सकते हैं आप. इसमें आए नहीं तो आप कोचिंग करें. कोचिंग ऑल्सो आपको कैसे गेम को आगे बढ़ाना है, कोच बन सकते हैं, मेंटोर बन सकते हैं. काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको एक लीडर बना सकती हैं. ओनली नॉट पॉलिटिक्स. मेरा कुछ और थिंकिंग था, मैं इसलिए इसमें आई. बट आई कैन जस्ट गिव देम एडवाइस कि आप ऑब्वियसली गिव बैक करने के लिए अपने कंट्री के लिए या अपने स्पोर्ट के लिए, इन विच एवर वे आई कैन डू इट, आई विल ट्राई टू डू इट. But I cannot force anyone कि आप ये करिए. Right. It has to be inspired. Yes, definitely. These are all personal choices. So say a girl जो आपके पास आके कहती है, who's say 20 years of age, voting age, and who's asking you कि दीदी रैकेट कौन सा यूज करना चाहिए, नहीं करना. If she would ask you, क्योंकि you are ultimately part of the BJP. If she will ask you कि मैम मैंने कोई पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करी है, आप मेरे को बताओ, why should I vote for BJP? What would you tell her? कि अगेन मैं उसको मैं फोर्स नहीं करूँगी. उसका जो मर्जी आए वो वोट करे, जिसको करे. लेकिन मैं यही बोल सकती हूँ कि आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आपका कंट्री को कौन बेटर कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है नॉन स्टॉप, कौन अपनी मेहनत कर रहा है.
you know, why will anyone put so much efforts to, you know, get the country, मतलब इतना improve कर सके country को? क्यों ऐसा हो रहा है कि हम every day या every maybe न्यूज़ चैनल्स में, हम तो न्यूज़ चैनल्स को ही फॉलो कर सकते हैं कि जितना हम देख रहे हैं सब जगह इंडिया इज़ डूइंग वेल, इंडिया इज़ यू नो रियली इम्प्रूविंग. हमने इतने सारे चीज़ें पॉसिबल करे हैं अभी. एंड देन मोदी सर का नाम इज़, यू नो, व्हेनेवर आई गो टू एनी अदर country to visit, it's become so popular. Everybody knows Modi. Yeah, I've been traveling from last 20 years. But अभी recently ये changes क्यों दिख रहे हैं मुझे? You know, कुछ होगा ना उसका finally. But obviously मैं और भी सही तरीके से बोल सकती हूँ जब मैं प्रॉपर तरीके से पॉलिटिक्स में एंटर हो जाऊंगी या उनके बारे में जानने लग जाऊंगी. बट अभी तो मुझे जो टीवी से, जो बाहर जाके जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है अपने एक्सपीरियंस से, जो मुझे लगता है कि अगर मुझे ये लगता है कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हाँ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और इतने वर्षों से आप 2014 से आप मोदी सर को फॉलो कर रहे हैं, तो यू नो व्हाई इज ही इवन 2 times प्राइम मिनिस्टर, यू नो, इट्स समथिंग ही मस्ट हैव डन रियली रियली गुड फॉर द नेशन. और काफ़ी लोग उनको ही, जहाँ पे भी जाती हूँ मुझे वो बोलते सर ने ये अच्छा किया, सर ने वो अच्छा किया. तो हर एक चीज़ में आई एम ओनली सीइंग द गुड थिंग्स. तो मुझे तो लगता है कि इसलिए मैं जाके अगर मैं वोट करूंगी तो शायद क्योंकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस होगा मेरा, तो मैं इसलिए उस पार्टी को वोट करूंगी. तो मैं उस लड़की को, अगर शीज थिंकिंग कि अगर उसको लगता है कि वो दूसरे पार्टी में कोई अच्छा कर रहे हैं तो वो उसको वोट करना चाहती है, तो मैं रोकूंगी नहीं. लेकिन उसको ये बोलूंगी कि अगर जो आपको कंट्री आपको लग रहा है कि इम्प्रूव कर रहे हैं और आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं हम स्टैग्नेंट हो गए हैं, हम भी एज ए नेशन बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, तो आप उनको करिए. दैट्स योर. हम एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं, हम मेडिकल फैसिलिटीज़ में अच्छा कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं. अगर आपको लगता है हम हर एक चीज़ में अच्छा कर रहे हैं, तो इट्स अप टू यू टू थिंक कि हम किसको वोट दें. राइट, यू नो, राइट. पर्सनल चॉइसेस तो होती हैं, वो तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं. बट बाकी ये सब चीज़ें जो थोड़ी बहुत देखनी चाहिए जो बाहर की, एंड जितना मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस से देखा गया, तो मैं इतना ही मैं समझा सकती हूँ. बाकी ऑब्वियसली जो पार्टी में एंटर होके आप और अच्छे से जो एडवाइस कर सकते हैं वो डिफरेंट होगा. राइट. Do you think, मतलब, there was an era you spoke about nation, game, all of that. Like there was an era where Bollywood was the national, क्या बोलूँ, the Fevicol, हाँ, for national integration. आपको ऐसा लगता है कि, मतलब एटलीस्ट मुझे तो ऐसा देख के लगता है कि sports has taken that place of Bollywood, क्योंकि it's when sports person and sports women and men like you win medals and are playing. I feel कि आजकल के ज़माने में एकदम national pride का, I think top 3 stars are sports stars who you know make you feel like a nation has come together, and especially with इतने सारे लोग coming in from different states, smaller states, and you know sort of coming all together to play for the country. मैं ये नहीं बोलूँगी कि बॉलीवुड या क्रिकेट का क्रेज़ कम हो गया. वो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो हमेशा ऐसा बना हुआ है. उन्होंने अपना सिस्टम इतना स्ट्रांग कर लिया है कि इट विल ऑलवेज बी, मतलब मैं भी शाहरुख खान फैन हूँ, मैं भी जाके मूवी देखूंगी, आई कैन नॉट डिनाई दैट, क्योंकि वो हमारा इतने साल से मतलब एक बड़ा चीज़ बन चुका है हमारे कंट्री में. एंड देन क्रिकेट ऑल्सो, आप उसको अवॉइड करना चाहेंगे तो भी आपकी नज़रें जाएंगी, आप उसको देखना ही चाहेंगे कि स्कोर क्या है, क्या हुआ है. और सब क्रिकेटर्स, सब स्पोर्ट्स पर्सन के इंस्पिरेशन तो रहते ही हैं. एंड ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑब्वियसली कंपेयर नहीं करेंगे तो बेटर है. बट अदर स्पोर्ट्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, वी आर गेटिंग पॉपुलर, पीपल वांट टू फॉलो अस, पीपल वांट टू सी के उसके लाइफ में क्या हो रहा है, वो कहाँ पे परफॉर्म कर रही है, कहाँ नेक्स्ट टूर्नामेंट खेल रही है, वो अवेयरनेस बढ़ रहा है. दैट इज़ वेरी गुड. आई कैन ओनली से कि हम भी उस सिस्टम का हिस्सा हो रहे हैं धीरे धीरे. पीपल आर यू नो एक्सेप्टिंग न्यू थिंग्स, एक्सेप्टिंग अदर स्पोर्ट्स. तो वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले जैसे आपने बोला कि इंडिया में 2-3 चीज़ें चलती थी, अब क्या है हर एक स्पोर्ट में, मतलब मैं बाहर जाती हूँ तो एवरीवन स्टार्ट्स रिकॉग्नाइजिंग मी. एंड ऑब्वियसली उनको पता है कि नहीं कि बैडमिंटन है, टेनिस है, आई डोंट नो, बट दे नो हु साइना इज, हु सानिया इज, हु सिंधु इज, हु श्रीकांत इज, सो दे प्रणॉय इज, सो दे आर रिकॉग्नाइजिंग अस, दे वांट टू फॉलो अस, दे विल जहाँ पे भी सोशल मीडिया में they want to blast us if we lose matches, they want to support us. तो ये एक मतलब you can sense that क्या पॉपुलर हो रहे हैं. राइट, ये सब चीज़ों का मतलब है क्या पॉपुलर हो रहे हैं. एंड that's what you want, you know. और भी मिले सपोर्ट, और भी मिले. of course media houses he can do that magic, and they are definitely doing it.
they are definitely trying to help all the other sports to get the recognition, to get the support. If 15 years पहले से अब देखा जाए तो it's improved so much. हम उनके close आ रहे हैं, but still lot of difference. We cannot say कि हम वहाँ पे आ चुके हैं. In terms of financial support, in terms of visibility, still बहुत कम है, but बहुत better है. Yeah. What do you think? Finally, I mean, you've seen like so many tournaments, so many opens, so many series. What is your take on the current state of badminton for women in the country? Do you see some new players emerging? Do you feel ki fresh talent up, like which can match up to the kind of work you guys did? Do you think वो अभी है कि there's some gap? देखिए, आई थिंक एक चीज़ आई वुड से कि मेरी फैमिली में अच्छा था कि मम्मी हाउसवाइफ थी. तो हाउसवाइफ थी तो शी डिडंट लाइक हैव टू वरी अबाउट के जॉब जाना है. शी वाज नॉट लाइक आजकल के पेरेंट्स में दोनों पेरेंट्स बिजी हैं. आई अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ देम वांट टू वर्क, वांट टू हैव हैप्पी लाइफ. मतलब उतना स्ट्रगल नहीं है लाइफ में. मुझे लगता है मेरी मम्मी जो ऐसे सोच सकती थी मेरे लिए कि इसको एक बड़ा प्लेयर बनाना है, शी कुड डिवोट फुल हर टाइम. मतलब मेरे लिए मेरे साथ रहने के फुल टाइम. एज ए वुमेन आई कैन अंडरस्टैंड. उनका भी सपने होंगे, उनको भी कुछ करना होगा, बट उनको लगा कि मैं शायद मेरे सपने इसके थ्रू पूरे होंगे, अचीव कर सकूँ, शायद कुछ कर सकूँ. पापा भी हॉकी बहुत पसंद करते थे, ही इज़ अ साइंटिस्ट, लेकिन उनको भी लगा कि मैं साइना को एक स्पोर्ट्स पर्सन बनते हुए देखना चाहता हूँ. बट अगर कोई लेडी शी इज थिंकिंग अबाउट कि मेरा बच्चा इतना अच्छा कर सके, एंड दैट टू अ गर्ल, उन्होंने तो नहीं सोचा कि वो लड़का है लड़की. शी डिडंट थिंक अबाउट दैट. शी वाज लाइक, शी डिडंट थिंक कि इसका शादी करना है या कुछ, इसको 10th के बाद इंजीनियरिंग करवा देंगे. उन्होंने सोचा इसको हम एक प्लेयर बनाते हैं, इसको ओलंपिक मेडलिस्ट बनाते हैं, फिर देखते हैं व्हाट, बिकॉज शी एज आई सेड शी यूज्ड टू लव स्टेफी ग्राफ. तो शी थॉट कि साइना को, इनफैक्ट शी पुट माय निकनेम है स्टेफी साइना. सो मे बी उनको लगा कि इसको हम स्टेफी ग्राफ जैसा कुछ बनाएं, बैडमिंटन में कुछ अच्छा करवाए. And me being a girl, I had that belief it's possible. I trained very hard. I know it's not easy for women. I know the tough days. I know the happy days, bad days. But we played matches on those days, and it's possible. You just have to be mentally a little strong. And the changes are happening. I'm so happy and proud that इतने सारी लड़कियाँ आके खेल रही हैं स्पोर्ट. इतने सारी लड़कियाँ घर से बाहर निकल के बोलती हैं कि मुझे चैंपियन बनना है. इट्स सो स्पेशल टू सी. बट कभी कभी मुझे दुख होता है कि शायद पेरेंट्स के पास उतना टाइम ना हो, और पेरेंट्स उतने स्ट्रिक्ट हो या ना हो. यू हैव ऑल दोज डाउट्स, क्योंकि स्टार्ट पेरेंट्स से ही होगा, पेरेंट्स से या कोचेस से. आप 8-9 साल के बच्चे को आप बोल नहीं सकते तो बस कर ले, मैं हूँ तेरे साथ. इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. Some hand holding is very important. तो अभी वो बच्चों में मुझे लगता है बस वो कमी है. पेरेंट्स कभी कभी आ जाते हैं देखने के लिए कि कैसा कर रहे हैं, बट खुद से आना इज ऑल्सो नॉट ईजी एट दैट एज. इट विल ओनली कम इफ यू ट्राई टू फीड दैट प्लेयर कि तुझे अच्छा करना है. मे बी 1 साल, 2 साल, 3 साल, मे बी 6 साल उसको दिमाग में से डालना है कि यू हैव टू डू वेल. यू हैव टू रियली बी सो फोकस्ड कि आपको ये स्टेट चैम्पियनशिप जीतनी है, नेशनल चैम्पियनशिप जीतनी है, या इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा करना है, या तुझे ओलंपिक मेडलिस्ट बनना है. आपको किस तरीके से उसके दिमाग में फीड करना है इज अ चैलेंजिंग थिंग. ऐसा भी लगना नहीं चाहिए कि आप उसको प्रेशर में डाल रहे हैं. एट द सेम टाइम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसको तेरी मर्जी तो फिर टाइम पास के लिए खिला लीजिए. दैट्स ऑलवेज एन ऑप्शन टू स्टे फिट. आप बन जाइए डॉक्टर, आप बन जाइए इंजीनियर. इट्स आई थिंक नॉर्मल है. और ईजी है कि नहीं आई डोंट नो, बट डेफिनेटली सब बन रहे हैं तो शायद ईजी ही होगा. बट क्या स्पोर्ट्स पर्सन क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्यों हम हमेशा मे बी ओलंपिक मेडलिस्ट 5 ही आ रहे हैं? अब आप दूसरे कंट्रीज के देखें तो 70-80 इतने सारे मेडल आते हैं, हमारे पास 5 ही आ रहे हैं. सो दैट मीन्स इट इज टफ. बट मैं एक एग्जाम्पल हूँ अभी. उनके सामने इतने सारी लड़कियाँ, इतने सारे लड़के जो अच्छा कर रहे हैं, सब एग्जाम्पल हैं अभी. इट जस्ट दैट थोड़ा पुश चाहिए. आई एम श्योर बेस्ट कोचेस तो है ही, बट फैमिली से चाहिए होगा. इट स्टार्ट्स एट होम. जो फैमिली से थोड़ा सा चाहिए होगा, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस चाहिए होगा. आजकल के बच्चे, आई नो इट्स नॉट ईजी टू टीच देम टू होल्ड रैकेट, क्योंकि आधा टाइम फ़ोन ही है हाथ. बट कैसे आप उनको बनाएंगे? इट्स गोइंग टू बी सो टफ कि वो फ़ोन पे ही फुल टाइम रहे. दैट्स अ कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन. इट्स टू मच. लकीली आई वाज 14-15 व्हेन वी फर्स्ट गॉट द फोन. अभी तो 2 साल का बच्चा knows how to click pictures and all. मैंने कहा भाई ये क्या है? What is this? It's not
इट्स टोटली डिफरेंट जनरेशन एंड आप उतना एग्रेसिव भी नहीं हो सकते हैं, आप उतना ज़्यादा प्यार भी नहीं कर सकते। कहाँ बीच में आप उनको समझाएं कि कैसे आपको उस फील्ड में जाना है और फोकस करना है। एंड आई फाइंड दैट कि थोड़े से आप रिच फैमिलीज में इट्स डिफिकल्ट मोर, इट्स नॉट ईजी बिकॉज आई हैव नॉट सीन एनीवन के रिच फैमिली से कोई उतना कोई किसी को प्रूव करने का कुछ पॉइंट है कि हमें कुछ चैंपियन बनना है। आई हैव सीन दैट मोस्टली मतलब रूरल बैकग्राउंड से आते हैं या थोड़े से मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जहाँ पे प्रूव करने का एक पॉइंट जज्बा है, दिखता है जज्बा। और रिच पेरेंट्स में भी होगा वो, आई एम नॉट सेइंग नहीं होगा, बट क्योंकि उनके पास इतना सब कुछ है कि मे बी द किड फील्स के क्या करूँ मैं, यू नो, इट इज लाइक दैट कि क्या अचीव करने के लिए कुछ तो ऐसा मिले आपको, यू नो, पुश पीछे से। तो लकीली आई थिंक ऐसा मेरे साथ हुआ कि शायद मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बनूँ, ये कुछ नाम रोशन करे और कुछ यू नो फैमिली के लिए अच्छा करे। एंड आजकल के दिस थिंग जनरेशन में थोड़ा टफ है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल क्योंकि प्लेयर्स भी आ रहे हैं, थोड़ा टफ भी है, बट एट द सेम टाइम इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इट्स नॉट कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, बट लिटिल बिट मोर सपोर्ट फॉर द एकेडमीज एंड इंडियन कोचेस को और सपोर्ट मिलना चाहिए क्योंकि इंडियन प्लेयर्स आजकल they have played the best, you know, सब players जो बैडमिंटन में अब सब everyone was top 25 players, सब have played at the highest level. तो हम foreign coaches पे depend करते हैं, but we definitely need more Indian coaches also, क्योंकि हम वो सब level पे खेल चुके हैं। And trainers and all these things are obviously the requirement है उनका, but और ऐसा support मिलेगा तो not only cricket and Bollywood, but I'm sure दूसरे sports भी equally popular हो सकते हैं। So what are your plans now? You're still in your active career. Do you still want to play? And मतलब how does that look? अभी क्या चल रही है आपकी training and like how does your day look? So देखिए इतने साल से ऐसे 20-25 years से I've been playing the sport. It's getting a little difficult. It's not easy. I thought कि you know player का life चलते रहता है, हम struggle करते हैं, हम फिर से प्रूव करते हैं, जीतते हैं हारते हैं, इतना सब कुछ फेस करने के बाद देयर इज अ स्टेज वेयर यू फील कि आपको और खेलना है क्योंकि गेम इज सो यू हैव लव्ड द स्पोर्ट फॉर सो मेनी लव द गेम इटसेल्फ, यू लव द कॉम्पिटिटिव फीलिंग एंड इट्स बीन देयर फॉर सो मेनी इयर्स, यू हैव बीन इन दैट काइंड ऑफ मूड, यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट। लेकिन यू नो आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद माय नी फॉर क्वाइट सम टाइम. My knee, I would say cartilage is degenerated, so arthritis जैसा कुछ हो चुका है and it's giving me a lot of swelling again and again and again. So I still want to fight it out. Let's see कैसे चलता है. Game has always been my first love. तो जितना I can push myself, you know, let's see कब तक I can push myself. Obviously, quitting is always an easier option. आप कभी भी quit कर सकते हैं, बोलते it's done, I am done. You know, my body is giving up, maybe, you know, I don't want to do it. But fighting is something which I like, you know, from childhood. I would like to fight out. Let's see if it is going to allow me to play at the highest level and whether I can come back to that place where I used to win tournaments. If it is not going to help me, of course, it's not going to be, you know, easy for the body. But I will try my best, jitna ho sakega. I would like to spend some more time in the game and see how it is. Yeah. And how this goes. Yeah. Okay. Great. And I think besides badminton, अब आपकी और क्या hobbies या interest? One, of course, I know that you like to, you know, you are a great Insta-friendly person and you love, you know, taking your mind off. Like, what are your other hobbies, like other interests जो अब develop हो रहे हैं साइना नेहवाल के? मुझे टेनिस देखना बहुत पसंद है. I love watching tennis. जो भी मैचेस आते रहते हैं, I love watching that. Badminton matches, you know, whenever the tournaments are going on. I'm mostly a sports person, you know. I love to watch a lot of sports and Bollywood, you know, जब भी movie आती हैं, I go watch movies and shopping. I love shopping. मैं और काफ़ी हद तक traveling बहुत पसंद है मुझे. तो क्योंकि बचपन से इतनी traveling हो चुकी है ना, घर पे बैठ के भी मज़ा नहीं आता है. You like to travel so much. और पेरेंट्स ने इतना कुछ मिस आउट कर चुके हैं मेरी वजह से. दे पूरा उन्होंने भी मेरे साथ साथ अपना लाइफ भी इसमें डिवोट कर दिया है. तो आई लाइक टू शो देम सम प्लेसेस, उनको भी ताकि अच्छा लगे. तो जब भी टाइम मिले आई लाइक टू शो देम सम प्लेसेस, यू नो, वेयर दे वांट टू विजिट. उनकी थोड़ी ख्वाहिशें जो अच्छी लगती है मुझे पूरी करने के लिए. एंड ऐसा कुछ कपिल शर्मा शो इज़ माई फेवरेट शो. अच्छा, ओके, माई फेवरेट शो.
लेकिन अभी जैसे बचपन से जैसे एक ही रूटीन रहा है ना, वी नेवर गॉट द चांस कि कुछ अलग कर सके या कुछ किसी अलग चीज़ के बारे में इतना सोच सके. तो आई नेवर गॉट अ चांस बेसिकली वो बैठ के सोच सके कि और क्या करना है. यू नो द लाइफ इज बीन सो बिजी ट्रैवलिंग एंड just focusing on the game and you know ये छोटी-छोटी चीज़ों पे ही ध्यान इतना रहा है कि I never got a chance के कोई और हॉबी बना सकूं. हाँ, okay, but politics is on the cards. I definitely would like to try. अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ कि फ्यूचर क्या है, but definitely why not? Great. So I think that's a roundup. Tell me something before we let you go. Give us a message for the youth. Give us a message for woman or a man or a guy who are, you know, trying their level best to make their name in badminton or other sports. And tell us and give us a message for youth in general who wants to do something for their country. I can only tell, about my journey, about my experience to them that the special feeling of standing on the podium with the medal for the country. And when you're standing, especially in the Olympics with that medal, it's a dream of every player to win an Olympic medal. Yeah. And when I was in 5th, 6th standard, I used to read about P.T. Usha ji, Milkha Singh ji, that they just missed a medal in the Olympics. Yeah, I used to feel कि क्या हाल होता होगा, how a player feels if they're very close to winning an Olympic medal और उनको वो ना आए, and it's so tough to even imagine. The life of a sports person is just one take. You don't have another chance. You have chances, but it's not like आपको Olympic next year फिर आ रहे हैं. Olympics are once in 4 years. So the dream of every player is to वो Olympic medal अपने country के लिए चाहिए to stand. Only 3% can stand there. Yes. 3%. And I had the opportunity to do that. तो इतना special feeling लगता है मुझे. So मैं being a sports person, I just want to मोटिवेट देम, इंस्पायर देम कि आप बस स्पोर्ट्स में आइए. बहुत इंपॉर्टेंट है हमें और स्पोर्ट्स पर्सन्स, क्योंकि हमारी कंट्री में इतना टैलेंट है ना. आई सी सो मेनी स्पोर्ट्स पर्सन हैविंग सो मच ऑफ टैलेंट. इतना उनका रिस्ट अच्छा है, इतना उनके स्ट्रोक्स अच्छे हैं. आई विश आई हैड दैट काइंड ऑफ रिस्ट एंड टैलेंट. आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, बट आई नेवर हैड अ क्वालिटी, टैलेंट नहीं था मेरे पास, क्वालिटी स्ट्रोक्स नहीं थे मेरे पास. But I can see all of them having so much of talent. It's just that 10th के बाद they are not able to decide क्या करना है, और इतना सारा talent हमारा ख़त्म हो जाता है, नहीं हो पाता है. And I feel so sad for them. लेकिन मुझे यही बोलना है कि आपको जो fame, जो visibility as a sports person मिलती है, you get almost everything. The happiness of winning those medals is something special. तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि me being a girl, एक लड़की हो के मैंने हरियाणा से निकल के ऐसा अपने कंट्री के लिए किया. एक एवरी डे आई टू ड्रीम कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे भी बड़ा घर, गाड़ी, मेडल्स, ये सब एक ड्रीम था. आई टू जस्ट स्लीप एवरी डे नाइट में ये बस सोच के सोती थी मैं. ऑल्दो आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड राइटिंग एग्जाम, लेकिन मुझे जो भी मूवीज़ में दिख जाता था कि यार इनके पास इतना बड़ा घर है, इनके ये है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी स्पोर्ट में अच्छा करना है, मुझे भी कंपटीशन करना है, लड़कों से बेटर करना है. Those things used to come in my mind, and it was obviously funny at that point of time, but possible हुआ मुझे. I am shocked कि मैंने ये possible किया. I could get a car for me, I could get a big house for me, I could achieve so many things for me. I could go, 24 medals for country, standing so many times on the podium and seeing my parents cry, my coaches cry. Oh my God. एंड दैट हैप्पीनेस के जो टीयर्स होते हैं, खुशी के आंसू जो बहुत ही अलग होते हैं. एंड देन आई एम ऑल्सो आई कुड गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू ईट थोड़ी सी आइसक्रीम में जो आई लव आलू पराठा. जीतने के बाद आलू पराठा मिल जाता था मुझे थोड़ा बहुत. तो इट इज़ सो स्पेशल. आप एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ देखिए, जैसे जोकोविच है, रोजर फेडरर है, सरीना विलियम्स है. आई मीन इट्स सच अ आई कैंट इवन एक्सप्रेस. इतना अच्छी तरह से डिसिप्लिन लाइफ होता है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन का. एंड इफ़ यू लिविंग इन, आई थिंक इट्स ग्रेट. सो वी जस्ट वांट, मतलब चाइना से कंपटीशन करना ही है, हमको मेडल जीतने ही है. वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? चाइना वर्सेस चाइना हो सकता है. जब मैं लेके आ सकती हूँ तो डेफिनेटली हम सब लेके आ सकते हैं. जस्ट दैट थोड़ा सा पेरेंट्स से सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा उनका पुश चाहिए, थोड़ी डांट मारने तो मारना चाहिए, क्योंकि वी नीड प्लेयर्स. वो चाहिए हमें. And that's how we will get
मतलब बैडमिंटन भी हम क्रिकेट के स्टेज पे लाएंगे या हम बॉक्सिंग को, रेसलिंग को या डिफरेंट स्पोर्ट्स को लाएंगे, शूटिंग को हम तभी उनको वैसी पोजीशन पर ला सकते हैं जब हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी जो फैमिली है वो फर्स्ट उन बच्चों को थोड़ा सा पुश कर सकेगी. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द पेरेंट्स के आप ज़रूर करिए ऐसा. एंड आई एम श्योर मैंने अपने पेरेंट्स के मुंह पे वो स्माइल देखा है, वो एक प्राइड फीलिंग देखा है, तो आई एम श्योर यू विल नॉट रिग्रेट इट. यू विल डेफिनेटली बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ योर kids. Worth all the hard Worth all the hard work. Yeah. So what is, besides badminton, besides politics, are you interested in films? Like, do you want to do a cameo somewhere in some picture? Like, I want to know, are you interested in acting or? Acting, I love watching movies, but acting is very difficult. Again, it's a difficult field again. Have you done modeling? No. Have you walked the ramps? As a player, they keep inviting, all the designers keep inviting us to walk the ramp or advertisements. ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन again movie is totally different. It just मेरे को देख के ही मजा आता है. Nothing like I want to, मुझे कुछ interest नहीं, nothing at all. I'm happy with my sports life. I would like to in future maybe as a mentor, give advices to a lot of youngsters to come up and do well in the sport. And in a way, बैडमिंटन से कुछ जुड़ा हुआ चीज़ में आई वुड लाइक टू स्पेंड माई टाइम, नॉट एक्टिंग एट ऑल. तो फाइनल अब कोई ख्वाहिश क्या रहेगी आपके मन में? What is left to achieve for that hard-working Saina who would keep an aim and then work towards it? I think मतलब इतना कुछ अचीव कर रहा है मैंने. I'm with that situation where I didn't have anyone to look up to, as I said. तो मुझे I think वो अंदर से आ जाता है फीलिंग कि आई एम वर्किंग हार्ड, वो चीज़ पॉसिबल है. तो मैं टारगेट ना थोड़ा कम ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप अगर हार्डवर्क नहीं करेंगे, आप अगर ट्रेनिंग 100% नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही नहीं. सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द टूर्नामेंट. तो फाइनली द प्रिपरेशंस आर सो इम्पोर्टेंट. तो अगर मेरा बॉडी फुल्ली ऑल राइट नहीं है, हाउ विल आई बीट वर्ल्ड नंबर 1? सो द टारगेट बनाना इज नॉट so easy, especially in sports. Right. And if you're if you're definitely world number 1, then obviously you have you can set all the targets. But at the moment you are struggling with some players, you're not able to beat them. Then how can you set the target to win against them, right? So first, the training has to be so good and so perfect that you feel कि अभी मुझे हराने वाला कोई हो ही नहीं सकता है. So basically मेरा वही फंडा रहा है कि I want to give my best in training, and then the results will be really fun. Yeah. So वो ही term से I've been following from my childhood, and I think इसलिए ही 11 super series titles possible हुए हैं. वरना I don't see many players winning 4-5 also, because it's really really tough to win so many super series and playing back to back almost 14-15 tournaments in a year. It's very very tough. So the challenging part is target. Setting target is very tough in sports. But yes, you really want to do well in every world championship, every Olympics, every tournament. तो वो तो हमेशा दिल में रहता ही रहता है. तो जब तक एक प्लेयर है तो वो टारगेट तो हमेशा सेट रहते ही दिमाग में रहेगा. एंड बट वन थिंग इज दैट 100% ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट, नहीं तो कुछ पॉसिबल नहीं है. That's where the grill starts. That's it. Okay. To close up, is there any favorite song that you'd like to hum for us? Anyone, any song that you hum to yourself while, I don't know, I'm a bad singer. But the recent song of Animal movie, Arjun Valley, is very, very, very nice to hear. Although I don't know Punjabi language, but I really like that song. Maybe you can play it again. I know, I can play it in the end. Thank you so much, Saina ji. This was lovely talking to you. And मतलब अभी मेरा बैडी खेलने का मन कर रहा है आपसे बात करने का. Definitely, you should for fitness. Yeah. Thank you so much. It was lovely talking to you. Thank you.